Good morning, dear students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 9, Heredity and Evolution. So, here the topics in this chapter are: first, we will study its introduction, next are types of variations, and in types of variation, we will study two types: somatic variation and gametic variation. Next is accumulation of variations during reproduction. देन नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन स्टडी करेंगे तो उसी में जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज अबाउट द वेरिएशंस इन sexual reproduction. Next is about the variations in sexual reproduction, and next is importance of variation. Then next topic is Mendel and his work on inheritance, where we will study the 7 pairs of contrasting characters in garden P. Then next is about the Mendel's experimental material. Mendel has selected pea plants for his experiments that we will study in detail. Next are monohybrid cross. It is a new term for you, and in this cross we will study pure or homozygous condition and heterozygous conditions, which also known as hybrid, and observations of monohybrid cross and its conclusion. Then next is about the dihybrid cross, and in dihybrid cross we will study the phenotypic ratio and observations and conclusion. And next is how do these traits get expressed. And next last topic is sex determination. There we will study the factor responsible for sex determination and sex chromosomes. So this topic is up to the sex determination in your syllabus of this year. The next topic रहेगा evolution, that is not in your syllabus. जो next दिया हुआ है इसमें about the evolution, या इसमें जो next दिए हुए हैं इसमें ways by which speciation takes place, वो भी आपके syllabus में नहीं है. Then evolution and classification भी आपके syllabus में नहीं है. जैसे related to evolution जो भी topics हैं वो आपके syllabus में नहीं है. Last जो human evolution दिया हुआ है that is also not in your syllabus. So first is about the introduction of this chapter. So here's genetics. Genetics deals with the study of heredity and variation. So जैसे आप स्टडी करते हो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, वैसे ही जेनेटिक्स जो ब्रांच है वो किसका ब्रांच है? बायो का ब्रांच है. क्लियर? हम देखते हैं जैसे साइंस के 3 ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, तो वैसे ही बायो का जो ब्रांच है वो जेनेटिक्स है, जिसमें किसकी स्टडी होती है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन की. So next that comes in your mind is what are these terms stand for? Heredity and variations क्या होते हैं? So next definition given here is heredity. So the transmission of characters or traits from one generation to the next generation is called heredity. Clear? जो characters का transmissions होता है from one generation to next generation, that is known as heredity. And the next term is variation, and the differences in the characters or traits between the parent and offspring is called variation. जो parents और offsprings में differences होते हैं उनके characters में, उसके लिए क्या term है? Variations. So next is about the types of variations. So there are 2 types of variation. First one are the somatic variation and second one are gametic variation. These gametic variations are also called germinal variations. So first are about the somatic variations. It takes place in the body cells. ठीक है, जो body cells हैं, ठीक है, इनमें ये somatic variation होती है. It is neither inherited nor transmitted. क्लियर? ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाती है. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेड्स. क्लियर? इनको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं. एंड एग्जाम्पल्स आर कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स एंड बोरिंग ऑफ पिन्ना एक्सेट्रा. तो जो सोमैटिक वेरिएशंस होती हैं वो जो गैमीट्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स होंगे बॉडी सेल्स में, उनमें जो चेंजेस आएंगे, उनमें जो वेरिएशंस आएंगी, दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशंस. क्लियर? सो इसमें जो एग्जांपल जैसे कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स, तो जैसे डॉग की टेल को कट कर देते हैं, बट इसमें हम देखें कि ये वन जनरेशन नेक्स्ट जाएगा कि नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसमें जो डॉग रहेगा उसकी टेल क्या रहेगी?
वो वैसे ही होगी कि वो भी टेललेस डॉग होगा, कि उसकी कोई टेल नहीं होगी नेक्स्ट जनरेशन में, कि उसको उसके जो पेरेंट्स थे उनकी टेल कट कर दी थी, कुछ नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी टेल कटी हुई होगी। तो वो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ सोमैटिक वेरिएशन, जो उसकी बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है, उसमें वो चेंजेस लाए हैं, ना कि उन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसमें। नेक्स्ट है बोर्डिंग ऑफ पिन्ना, जिसे जो ईयर है उसमें जो छेद करवाते हैं फॉर पुटिंग इयररिंग्स, तो वो भी क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन करवा रहे हैं, बट ये नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में कोई ऐसा हुआ जिसके पहले से बोरिंग हुई हो ईयर में। क्लियर? तो these are the examples of somatic variations. Is clear? इसमें next are the gametic variations, or these are also called as germinal variations. They take place in the gametes or reproductive cells. रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसमें जो वेरिएशंस आती हैं, these are called gametic और germinal variations. They are inherited as well as transmitted. Clear? वो क्या होंगी? वो आएंगी नेक्स्ट जनरेशन में, और इनहेरिटेड मीन्स हम इनहेरिट करेंगे उनको पेरेंट्स से। क्लियर? और ट्रांसमिटेड मीन्स वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। क्लियर? सेम थिंग है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगी, जो क्या रहेंगी, गैमेटिक और जर्मिनल वेरिएशंस। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनको क्या बोला था? एक्वायर्ड ट्रेट्स, और इनको क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो एग्जांपल क्या है इसमें? ह्यूमन हाइट, स्किन कलर। क्लियर? जो हमें आएगा हमारे जर्मिनल सेल्स गैमीट से, वैसे ही वो एक्सप्रेस होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट इज अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होती है तो कब ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू दिस। सो वेरिएशंस अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन whether organisms multiply sexually or asexually. क्लियर? ऑर्गेनिजम्स कैसे भी मल्टीप्लाई करें, सेक्सुअल मेथड से या असेक्सुअल मेथड से, हमने ये स्टडी कर ली है प्रीवियस चैप्टर में। तो उसमें वेरिएशंस कैसे एक्यूमुलेट होती हैं। फर्स्ट आर द वेरिएशंस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वेरिएशंस आर फ्यूअर। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपने देखा है उसमें कोई फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स नहीं है। ठीक है? जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी दैट विल बी लाइक द पेरेंट जनरेशन। जैसे व्हाइट रोज है तो नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या रहेगा? व्हाइट रोज रहेगा। क्लियर? देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। तो उस केस में क्या है? वेरिएशंस कम है। अकर्स ड्यू टू स्मॉल इन अकरेंसेस इन डीएनए कॉपिंग। अगर उसमें चेंजेस आने हैं, वेरिएशन क्या होता है? जो उसका डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स हैं, उसमें जब चेंजेस आएंगे थोड़े से तो वेरिएशंस होंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो बहुत कम है। क्लियर? जो म्यूटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो स्मॉल इन अकरेंसेस इन डीएनए कॉपिंग। तो थोड़ा सा चेंज आएगा उसमें तभी वो आ सकते हैं उसमें चेंजेस, वैसे नहीं आएंगे। Next is variations in sexual reproduction. So variations in sexual reproduction are large. Why these are large? Because there are the involvement of two parents. टू पेरेंट्स से करेक्टर्स आ रहे हैं, तो जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स, मिक्सिंग इन द सेंस टू डिफरेंट इंडिविजुअल से करेक्टर आए, तो उसमें जो प्रोसेसेस हैं, जैसे गैमीट्स बनने की प्रोसेस है या गैमीट्स फ्यूज होने की प्रोसेस है, वहां पे क्या होगा? देयर विल अराइज वेरिएशंस। थोड़ा सा चेंज आएगा तो वहां पे वेरिएशंस आ जाएंगी। सो अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड म्यूटेशंस। तो उसकी वजह से क्या आएंगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आएंगी। नेक्स्ट इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। Depending upon the nature of variations, different individual would have different kinds of advantages. Clear? तो different organisms में क्या रहेंगे? Different examples, different जो ये रहेंगे advantages रहेंगे। जैसे बैक्टीरिया है that can withstand heat will survive better in a heat wave. क्लियर? जो बैक्टीरिया है जब वो एनवायरमेंट उतना ज्यादा हॉट नहीं है मान लो, और उन बैक्टीरिया को ऐसे एनवायरमेंट में डाल दिया जाए जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो उनमें वेरिएशंस आएंगी, वो खुद को चेंज करेंगे। ठीक है? और डीएनए उनका है उनके अंदर, वो उनको चेंज करने में हेल्प करेगा और वो वहां पे सरवाइव कर पाएंगे। मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू a species is that it increases the chances of its survival in a changing environment. क्लियर? तो जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता जाएगा वो खुद को उसी तरह से अडेप्ट करवाते जाएंगे, और उन अडेप्टेशंस में कौन हेल्प करेगा, उनके सर्वाइवल में कौन हेल्प करेगा? ये वेरिएशंस हेल्प करेंगी। फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये टू एग्जांपल्स दिए हुए हैं।
क्लियर। ईयर लोब्स आपने देखे होंगे, कईयों के फ्री होते हैं, कईयों के अटैच्ड होते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ द वेरिएंट्स, जो टू वेरिएशंस है। नेक्स्ट इज अबाउट द मेंडल। जो मेंडल साइंटिस्ट थे, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1884, बर्थ ईयर और डेथ ईयर लिखा हुआ है ये। तो ये जो है, इनको स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन पे अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। ही प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उन्होंने कुछ लॉज बनाए इनहेरिटेंस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और जो प्लांट सेलेक्ट किया था मेंडल ने, पाइसम सेटाइवम, जो गार्डन पी है, ही यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, टू अपोजिट कैरेक्टर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने सिलेक्ट किए थे। So these are the 7 pairs of contrasting characters जो उन्होंने सिलेक्ट किए थे। ठीक है, इसमें आते हैं, जैसे करेक्टर है, ये ट्रेड लिखा हुआ है साथ में। ठीक है, तो करेक्टर क्या है? जैसे फ्लावर कलर, यहाँ पे हम कलर ले रहे हैं फ्लावर का, वो एक करेक्टर है, बट उसके 2 ट्रेड्स हैं। क्लियर। एक वायलेट है, एक वाइट है। क्लियर, तो ये इसके 2 ट्रेड्स, इनको ट्रेड्स बोलेंगे। क्लियर। तो करेक्टर हम बोल सकते हैं कि ये एक बड़ा टर्म है और ट्रेड उसके छोटे टर्म्स हैं। सो फ्लावर कलर लिया उन्होंने फर्स्ट करेक्टर, जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट वो ट्रेट होता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है। क्लियर। और रिसेसिव क्या होगा? खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब ये डोमिनेट ट्रेट उसके साथ होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल। Clear. And next is about the seed color, yellow or green. Next is about the seed shape, round and wrinkled. राउंड सीड्स किसके ऊपर डोमिनेंट है? रिंकल्ड सीड्स के ऊपर। क्लियर। जो दोनों अगर इनके ट्रेड्स आ जाते हैं साथ में, जैसे हम इसमें जीन्स की बात करें, अगर दोनों के जीन्स हैं उस प्लांट में, तो राउंड वाला एक्सप्रेस कर पाएंगे, सीड्स राउंड होंगे, रिंकल्ड नहीं होंगे। रिंकल्ड कब खुद को एक्सप्रेस करेंगे? जब राउंड सीड्स का जीन वहां पे नहीं होगा। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड है और यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट इज पॉड कलर, ग्रीन और येलो। पॉड क्या होता है? जिसके अंदर वो सीड्स होते हैं, फ्रूट। हाइट ऑफ प्लांट, टॉल एंड ड्वार्फ और शॉर्ट। शॉर्ट के लिए ही अनदर टर्म क्या है? ड्वार्फ है। तो टॉल हाइट जो है डोमिनेंट है ओवर रेसेसिव, जो इसका ट्रेट है ड्वार्फ के लिए। These are the 7 pairs of contrasting characters selected by Mendel for his experiments. Next is Mendel's experimental material. So he chose garden pea, or the scientific name of garden pea is Pisum sativum, as his experiment material because of. तो क्या reason था उसने garden pea को select किया? So first is about availability of detectable contrasting traits of 7 characters. जो उसने 7 characters थे लिए उसमें, जो हमने अभी स्टडी किए ऊपर, तो उनको वो easily डिटेक्ट कर सकते थे। शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, और प्लांट की कैसी लाइफ साइकिल थी? शॉर्ट लाइफ साइकिल है। नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। हमने स्टडी किया था सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो भी इजी था उसमें परफॉर्म करने के लिए। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो करेक्टर्स उसको देखना था रिलेटेड टू सीड्स, तो वो भी उससे इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज Mendel's experiments. Mendel conducted a series of experiments in which he crossed the pollinated plants to study one character. ठीक है, तो उसने क्या करवाया? पॉलिनेशन थी वो खुद करवाई। जैसे कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे करेक्टर्स दिए हुए हैं, कोई प्लांट टॉल हाइट का है और एक प्लांट उसमें भी प्लांट ड्वार्फ हाइट का है, तो दोनों में क्रॉसिंग करवाई। उस क्रॉसिंग में क्या होना है? जो ड्वार्फ प्लांट है उसके पॉलन ग्रेन्स टॉल प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर गिराया, फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिराया, तो दोनों इकट्ठे आ गए वो ट्रेट। क्लियर। तो दोनों इकट्ठे आ गए, तो उसमें से जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो सभी टॉल प्लांट्स की आई। क्लियर। तो क्या बता रहा है ये? जब ये दोनों ट्रेट साथ में है, क्लियर, तो टॉल वाला खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया? क्रॉस जो करवाया, पॉलिनेशन जो करवाई वो खुद करवाई। क्लियर। तो उसको कंट्रोल्ड पॉलिनेशन बोलते हैं, जो उसने खुद करवाई पॉलिनेशन।
मेंडल ने। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द क्रॉसेस जो उसने करवाए फिर करेक्टर्स के लिए मेंडल ने, तो वी विल स्टडी देम लेटर।